Hello friends, welcome back in this online classes at PG Senior Secondary School कैप्टनगंज कुशीनगर। डियर फ्रेंड, आज की जो वीडियो जो है ये क्यूब एंड फ्लूइड से रिलेटेड है और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखो लास्ट तक, ताकि इसमें हर एक चीज़ें जो है आपको बारीकी से समझ में आ जाए, ताकि आपको जब एक्सरसाइज करने जाओ ना तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सो आई विल टेल यू बाई बोथ वेज, ओके, इंग्लिश एज वेल हिंदी टू गेट अ प्रॉपर नॉलेज। Now, at first we'll talk about that what is cube. Clear? So in maths, if a number is multiplied by itself 3 times, then whatever result you are going to get, the result will be known as cube. यानी मैथ्स के लैंग्वेज में अगर कोई भी नंबर अपने ही नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा वो भी 3 टाइम्स होगा, तो 3 टाइम्स के मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्ट आपको दिखाई देगा, दैट रिजल्ट विल बी नोन एज क्यूब हियर। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव सम एग्जांपल दैट if you have to find out cube of 2, clear? So cube of 2 means what? Here you have to take 2 and 2 you will take 3 times, and taking 3 times you have to multiply it. जैसे मान लीजिए 2 आप ले लिया तो 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। सो ये 8 क्या है? ये क्यूब है। सेम एज if you are finding cube of 5, clear? So 5 will be multiplied by itself but it should be 3 times. So whatever result you are going to get here, this one is known as cube. Clear? Now, if you are going to get some other problems just like based on decimals or as well as fractional numbers, so same process will be applied there. जैसे मान लो कि अगर आपको डेसिमल में आपको मिलता है कि फाइंड क्यू ऑफ 0.2, क्लियर? सो 0.2 will be multiplied by 0.2 will be multiplied by 2. It means 3 times you have to multiply. थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना होगा कि एक जो डेसिमल नंबर है and you have proper command on calculation. See there, 2 to the 4 to the 8. Now here decimal position is what? Before one digit, here before one digit and before one digit. So in result the decimal position should be before 3 digits. Okay, यानी आप देख रहे हो कि 1 डिजिट के पहले डेसिमल की पोजीशन है, तो रिजल्ट में जब आप डेसिमल लगाने जाओगे तो डेसिमल की पोजीशन 3 डिजिट्स के पहले होनी चाहिए। नाउ यू आर गोइंग टू गेट अ सिंगल डिजिट हियर, सो टेक 2 more digits but as a zero only, clear? And put here decimal. Okay, now you must know that a decimal number contains whole part and decimal part. If there is no whole part, so here should be 0. अगर मान लो डेसिमल नंबर जब भी लिखा जाता है तो उस डेसिमल नंबर में होल पार्ट के साथ साथ डेसिमल पार्ट भी होता है। जब होल पार्ट नहीं होगा तो आप वहाँ पे 0 का यूज करोगे। क्लियर? नाउ इफ यू आर गोइंग टू गेट some fractional problems for finding cube, okay, like example that find cube of 1 by 2, okay, so 1 by 2 will be multiplied by itself 3 times, so 1 by 2 multiplied by 1 by 2 multiplied by 1 by 2, so you get what? 1 by 8. so 1 by 8 क्यूब किसका है? ये 1 by 2 का है, यानी आपको 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया, आपको 1 by 8 आपको मिल गया। so same kinds of problem you have to do that. now there are some basic properties related to your textbook, okay, and what are these? The first one is that cube of even number is even and cube of odd number is odd. यानी अगर आप even number का cube करोगे तो even मिलता है, odd number लेकर के उसका cube करोगे तो odd मिलेगा। जैसे I'm going to give example that 4 is as even number, but if you are taking its cube, so 4 into 4 into 4 is equal to 64. अब देखो 4 क्या था? इवन नंबर था, लेकिन जब आपने क्यूब किया 64 मिला, तो 64 क्या है बेटा? ये भी इवन नंबर है। दिस वन इज आल्सो एन इवन नंबर। अगर आप ऑड नंबर लेके क्यूब करोगे तो रिजल्ट ऑड में आएगा। सी दैट 5 इज व्हाट? ऑड नंबर, क्लियर? एंड इफ यू आर टेकिंग इट्स क्यूब, सो 5 विल बी मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू इट्स पावर, इट मींस 3 टाइम्स, so you get here 125. तो 5 ऑड था, बट आपने जब क्यूब किया तो जो रिजल्ट आपको मिल रहा है जो क्यूब, वो भी क्या है? ऑड है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको जो मिलेंगे आप थोड़ा सा समझ के करिएगा। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज, बट बिफोर दैट, ओके, one more fact is given here, so I should tell you, otherwise you say that sir one fact was not told. चलिए उसको मैं बता देता हूँ मैं। If we talk about cube root of negative number, okay, so there is a see here one thing you should note in mind that
दिस वन सिंबल इंडिकेट्स टू स्क्वायर रूट। ये जो सिंबल जो है ये स्क्वायर रूट को इंडिकेट करता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि विच काइंड ऑफ सिंबल इज इट, सो यू हैव टू रिप्लाई दिस वन इज सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। बट क्यूब रूट के अकॉर्डिंग जो उसका जो सिंबल जो होता है ये होता है 3 जो होता है इस छोटे से अंक के अंदर होता है। तो ये जो है इस रूट के ऑर्डर को बताएगा। ये जो 3 जो मेंशन है यह जो है इस रूट के ऑर्डर को बताता है। तो यहाँ पे 3 लिखा रहेगा तो समझ लो ये क्यू रूट को इंडिकेट करता है। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्यू रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। तो सी दैट suppose that inside this q root there is any negative number. Clear? So what we have to do that we have to take out this minus sign outside, मतलब माइनस साइन को बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है? एंड यू हैव टू राइट बाय दिस वे। क्लियर? we'll solve problems on this pattern, okay, in my next videos, okay? So till now you have to अंडरस्टैंड सम बेसिक रूल्स, ओके? अगर इस तरह से जब भी रहेगा तो माइनस के साइन आप बाहर कर लेंगे, इस तरह से आपको मेंशन कर देना होगा। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज, ओके? सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट 4A of question number 1 and 2 and 3, okay? Because already this was already discussed as example that जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है कि फाइंड इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट 8 क्यूब, ओके? 8 क्यूब इज व्हाट? 8 का मल्टीप्लाई आपको 3 टाइम्स करना है। सो वट एवर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट, सो यू हैव टू सॉल्व वट एवर एक्सप्लेन, ओके? नाउ इवेल्युएट 1.2 ऑफ होल क्यूब, 3.5 ऑफ होल क्यूब। सो मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था कि कैसे करना है। इन थर्ड यू आर गोइंग टू गेट सम फ्रैक्शनल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके? सो जो पैटर्न जो पता है उसके अकॉर्डिंग करिएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 and 5 you have to understand that which of the following numbers are perfect cubes? In case a perfect cube, find a number whose cube is the given number. क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू गेट इन क्वेश्चन नंबर 4, ऑल आर परफेक्ट क्यूब। क्लियर? ओके? बट आपको ये चेक करना होगा कि वो जो नंबर जो दिए गए हैं वो किसके क्यूब हैं। क्लियर? अब एक चीज जान लो, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब के बारे में बात हो रही है। क्लियर? तो परफेक्ट क्यूब है क्या? व्हाट इज इट्स मीनिंग दैट? क्लियर? सो अ नंबर कैन बी कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब तभी होता है जब वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब हो। अब जैसे मान लो पहला एक प्रॉब्लम दिया गया है 125। क्लियर? अब ये परफेक्ट क्यूब है बट किसका है ये पता करने के लिए आप क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। सो 125 here, so you can write here 5 to the 10, 5 5 25, 5 5 25 and 5 5. So 125 can be mentioned as 5 into 5 into 5, or you can write 5 of whole cube, okay? यानी 5 चूंकि 3 टाइम्स आ रहा है तो ये नंबर टाइम्स होगा, एज ए पावर के रूप में आप मेंशन कर दोगे तो 5 बेस हो जाएगा, 3 क्या होगा एज ए पावर। सो हियर 125 is perfect cube of 5। तो इसी तरीके से आप जो है ये करेंगे आप, ठीक है? आप इसी तरीके से प्राइफेटेशन करिएगा और आप चेक कर लीजिएगा किसकी क्यूब होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके? इन क्वेश्चन नंबर 5 which of the following are cubes of even numbers and which of the following are the cubes of odd numbers? तो 5 और 6 में आपको ये बताने हैं, जैसे मान लो 5 जो भी क्यूब्स हैं, ठीक है, वो तो क्यूब्स तो दिए गए हैं बट आपको चेक ये करना है कि क्या वो इवन नंबर का क्यूब है कि नहीं है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी जो बताई थी कि इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर होता है एंड ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर होता है। तो अगर आप 5 में पहला अगर आप प्रॉब्लम देख रहे हो, इफ यू आर वाचिंग फर्स्ट प्रॉब्लम, सो 5 of first has given 216. So what is it? This one is even or odd? तो ऑब्वियसली आप कहोगे ये इवन नंबर है, तो आप लिख दीजिएगा
कि दिस वन इज क्यूब ऑफ इवन नंबर। इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि किस नंबर का क्यूब है, ये नहीं पूछा जा रहा आपसे। ओनली यू हैव टू जज इट दैट इज क्यूब ऑफ इवन नंबर और ऑड नंबर। तो 5 में जो भी है वो इवन नंबर के बेस पे है, 6 में ऑड नंबर के बेस पे है। सो दिस वन इज क्यूब ऑफ इवन नंबर। बट if you talk about 5 of second, 7 and 29, so this one is odd number, तो ये तो even number का क्यूब है नहीं। so इसी तरीके से आपको जज करना होगा और जज करके आप आंसर लिखोगे। now I'm just going to tell you about some story problem here, but I will tell you only one question, because if I'm going to tell you all the questions, okay, so what you will do that? So one question I would like to tell you. Find the smallest number by which 13 and 23 must be multiplied so that the product is a perfect cube. Clear? It means 1323 has been given. Clear? But what here to multiply to make it perfect cube? ये एक श्योर है कि ये परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, बट इसे बनाना होगा और बनाने के लिए वो कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। अब कुछ काम में क्या कोई एक सर्टेन रिजल्ट तो होगा ही होगा, but how can you find that particular number? So you have to do prime factorization of this given number. तो हम लोग चलिए इसको करते हैं। लोग take 13 and 23 and do its prime factorization. So this number will be divided by 3. So 3 4s are 12, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, and wait a minute, just we have to check this. 3 1s are 3, 3 4 are 12, and 3 7 are 21. Once again, 3 4 are 12 and 3 9 are 27. 7 7 are 49 and 7 1 are 7. Clear? So if you are going to give it solution, so we can write here. This one is question number 7 solution. Okay, you can write here 1323 can be expressed as 3 into 3 into 3 into 7 into 7. We observe here, we get cube of 3 but not for 7. अब देख लो यहाँ पे, जब आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आप देखो 3 टाइम्स आ रहा है, बट 7 तो 2 ही टाइम्स आ रहा है, तो एक 7 की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी, तभी तो ये क्यूब बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, मेक इट परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7, वी हैव टू मल्टीप्लाई given number is what we are talking about, this number. Clear? Given number by 7. Clear? इसमें ये नहीं आपको बताना कि किसका क्यूब बनेगा, बस आपको पता करना है कि किस नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो whatever I have told you, okay, whatever I have explained, just revise it and on the basis of it, okay, complete this exercise and we'll meet in my next video. Till now, still take care, keep smiling. Okay, thank you so much for watching this video.